بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ان پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی جزا اور سزا کے دن تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن انشاءاللہ شروع ہوگا علم الفرائض سے، اور یہ آج کے علاوہ انشاءاللہ 2 اور ہفتے اس میں لگیں گے مکمل ہونے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے صحیح علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے، اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اور ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اس میں جو بھی خیر ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو شر ہے اللہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو معاف کرے، اور ہمیں اس کی شر سے بچائے، اور خیر سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو علم الفرائض کسے کہتے ہیں؟ اسلامی قانون وراثت کے، علم میراث بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی ایک ایک اس کے نقطے کو واضح کیا ہے، اور اس میں کہیں بھی کسی بھی قسم کی شک اور شبہات نہیں رہ گئی ہیں۔ باوجود اس کے انسان اپنی حرص کی وجہ سے، اپنے مزاج اور اپنی خواہشات کی وجہ سے اس میں انصاف نہیں کر پاتا، اور یہ اس امت کی بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب کو اس پہ صحیح عمل کی توفیق دے اور ہمیں معاف کرے۔ علم الفرائض، فرائض کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ التقدیر، یعنی کسی چیز کا اندازہ لگانا، حد متعین کرنا، اس کو مقرر کرنا۔ الحصہ المفروضہ، یعنی لازمی حصہ، نامزد حصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے جو حصے ہم کو وراثت میں ملنے ہیں وہ فکس کر دیے ہیں۔ نہ اس سے زیادہ ملتا ہے انسان کو، نہ اس سے کم ملتا ہے، اور اس میں کمی اور بیشی کرنے والے کو اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ علم الفرائض وہ علم ہے جو وراثت کے صحیح حقداروں کے درمیان تمیز کرنے اور ہر وارث کا حصہ متعین کرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس علم میں ایسے احکام اور مسائل کی بحث کی جاتی ہے جو انسان کے مال سے اس کے مرنے کے بعد متعلق ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو دنیا میں رہ رہا ہے، اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے، اس کا اوپر پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو جس طرح کہے، حالانکہ اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ انصاف کرے، ظلم نہ کرے، اللہ کی خاطر خرچ کرے۔ ذمہ داریاں اس کی کچھ ہوتی ہیں جن کو اسے پورا کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں اس پہ فرض کی جاتی ہیں جن کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے جو وہ پوری کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ مر جاتا ہے تو وہ مال بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ وہ مال مرنے والا کس کس کو دے کے جا سکتا ہے اور کتنا دے کے جا سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے اس پورے مال کو وہ تقسیم نہیں کر سکتا مرنے کے بعد۔ یہ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں حصے، جس کو مرنے کے بعد مرنے والا اپنے مرنے کے بعد دے سکتا ہے، اور اس میں سے کچھ حصہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے گا، سب نہیں کر سکتا۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہاں پہ یہی سیکھیں گے وہ کیا ہے، مرنے کے بعد ہمارے صحیح حقدار کون ہے، اور ان حقداروں میں ہمیں تمیز کرنا ہے، وارث کا حصہ متعین کرنا ہے، ہمیں اپنے مال کا بھی دیکھنا ہے، اور ہمیں کن سے ملنا ہے، ہمارا حق کہاں پہ
ہے हम किससे ले सकते हैं और हम किसको मरने के बाद दे सकते हैं। और ये इल्म अपने माल के लिए हर इंसान पे फर्ज है। हर इंसान, जो मेरा माल है उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किसको दे के जाना है या मुझे किससे लेना है। इसका मौजू क्या है? इंसान का तरका है, यानी इंसान के मरने के बाद उसके पीछे इसका छोड़ा हुआ माल से मुराद उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है जिस पर उसकी शरई मिल्कियत साबित हो। इस इल्म के बुनियादी उसूल क्या है? इस इल्म के अहम और बुनियादी उसूल कुरान करीम में मौजूद हैं। ये इल्म अल्लाह ने उतारा है हम पर। मनकूला एंड गैर मनकूला, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जायदाद के हिस्से होते हैं, जमीन होती है, पैसा होता है, सब का सब, जो मूवेबल है, जो इमूवेबल है, जो भी हमारी मिल्कियत है, सब के सब उसकी विरासत होती है। इस इल्म के अहम और बुनियादी उसूल कुरान करीम में मौजूद हैं। इस वजह से इस इल्म में फ़िक़्ह के दीगर मसाइल की निस्बत इख्तिलाफ बहुत कम है। जो कुछ नए मसाइल सहाबा के ज़माने में और ताबईन के दौर में वजूद में आए, उनके मुतालिक उलेमा ने इज्तिहाद किया है। विरासत के शरई अहकाम, इल्मुल फराइद, विरासत के शरई अहकाम। इल्म फराइज के बारे में एक हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, इल्म फराइज सीखो और सिखाओ, इसलिए कि वो इल्म का आधा हिस्सा है, वो भुला दिया जाएगा और सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत से उठाया जाएगा। ये हालांकि शेख अल-अलबानी के नज़दीक दईफ हदीस है, लेकिन इसके मायने को सही करार दिया गया है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान 70 साल तक नेक अमाल करता रहता है, फिर वसीयत के वक्त अपनी वसीयत में जुल्म करता है तो उसका खात्मा बुरे अमाल पर होता है और जहन्नम में जाता है। इसी तरह एक इंसान 70 साल तक बुरे अमाल का इर्तिकाब करता रहता है, लेकिन अपनी वसीयत में इंसाफ करता है, उसका खात्मा बिलखैर होता है और जन्नत में जाता है। इंसान का जो आखिरी अमल होगा, इंसान उसी अमल पे उठाया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान के दिल का हाल जानते हैं और अल्लाह हमारे अमालों की हिफाजत करे और हमें अपने दिलों को पाक करने की हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। हमारे जज्बात इंसाफ के आड़े ना आए। हमारे जज्बात अमूमन अक्सर बच्चों के मामलों में, रिश्तेदारों के मामले में कुछ कभी किसी की तरफ ज्यादा मायल हो जाते हैं, किसी की तरफ कम मायल होते हैं और उसकी वजह से इंसान नाइंसाफी कर जाता है। और वसीयत एक ऐसा अमल है जो मरते वक्त अगर इंसान ने उसमें नाइंसाफी कर दी तो उसकी जिंदगी के नेक अमाल सब के सब जाया हो जाते हैं। और शैतान भी इंसान की मौत से के वक्त आके उसको बहुत ज़्यादा बरगलाता है। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से भी महफूज रखे और हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि जज्बात एक तरफ, अल्लाह का हुक्म एक तरफ, और हमें उसी पे अमल करना है। एक और है, दईफ हदीस है, लेकिन आयत की बुनियाद पर इसमें जो तंबी है, इसलिए इस वजह से इसको जिक्र किया कर रहे हैं यहाँ पे। जो शख्स अपने वारिस को मीरास दिलाने से भागे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे जन्नत की मीरास ना देगा। इसकी इसकी जो आयत है अल्लाह ताला ने जो उतारी है हम पे सूरह निसा में, उसमें भी अल्लाह ताला ने जो इसका मफहूम है उसी से मिलता है। इंशाअल्लाह आयतें हम आगे करेंगे।
उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, विरासत के कानून सीखो, ये तुम्हारे दीन का हिस्सा है। हमारे दीन का हिस्सा है विरासत के कानून सीखना, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे अमल से है और ये बहुत जरूरी अमल है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में किसी न किसी वक्त इन कानून के वजह से इनसे दो चार होना ही पड़ता है। सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ये हुदूद अल्लाह के मुकर्रर की हुई हैं, और जो अल्लाह ताला की और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा उसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह ताला की और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी मुकर्ररा हदों से आगे निकले, उसे वो जहन्नम में डाल देगा, जिसमें वो हमेशा रहेगा। ऐसो ही के लिए रुस्वाकुन अजाब है। तो अल्लाह ताला ने जब हमें इसके कानून दिए विरासत के, तो उसके आगे क्या हमको वार्निंग्स दी हैं? क्या अल्लाह ताला ने कहा कि ये अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह की हदों को हमें क्रॉस नहीं करना है, और जो करेगा, जो जो फरमाबरदारी करेगा, उसके लिए जन्नत का वादा है, और जो इन हदों को क्रॉस कर जाएगा और इनको पूरा नहीं करेगा, तो उसके लिए रुस्वाकुन अजाब का वादा है। अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले। अब विरासत के कानून को लेके तरह तरह के इस्लाम पे उंगली उठाई जाती है, और अफसोस ये भी होता है कि बाज मुसलमान अपनी लाइल्मी में भी इसको, अगर इसको सही ना माने या इसको गलत माने, तो ये कुफ्र होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा में फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूदा। अल्लाह ताला ने माँ बाप और कराबतदारों की तारके में मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी, जो माँ बाप और कराबतदार छोड़े मौत के बाद, ख्वाह वो माल कम हो या ज्यादा, हिस्सा मुकर्रर किया हुआ। जो माँ बाप छोड़ते हैं उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है, ख्वाह वो कम माल हो या ज्यादा माल हो। तो अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों का हिस्सा रखा है। एक जमाने में जिस वक्त ये विरासत की आयतें उतरी थी, औरतों को कुछ भी हिस्सा नहीं दिया जाता था, सिर्फ मर्द उसका वारिस बनते थे, बल्कि औरत को विरासत के माल में शामिल कर दिया जाता था और उनकी भी तकसीम हो जाती थी। आज भी कुछ दीन में, कुछ रिलीजन्स में ये चीज बहुत आम है। दूसरे रिलीजन में भी इसको मॉडर्न जमाने में अब औरतों का हिस्सा दिया है, लेकिन वो भी एक तरफ को झुका हुआ है। अल्लाह ने जो औरत को हक दिया है वही बेस्ट है, वही उसका हक है और वही इंसाफ है। आज के दौर में अब इक्वालिटी के जमाने में मर्द और औरत को बराबर का हिस्सा दिया जाने लगा है, और इसी की आवाज लोग उठाते हैं। दोनों ही सूरतें गलत हैं। ना तो औरत का हिस्सा जाया किया जा सकता है मुकम्मल तौर पे, ना मर्द के साथ उसकी हिस्से के मामले में बराबरी की जा सकती है, क्योंकि अल्लाह का जो हिस्सा है वो इंसाफ पे मबनी है। अल्लाह से बड़ा हिकमत वाला दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, और अगर किसी ने इसमें फेर बदल करने की कोशिश करी तो वो शिर्क में आता है, वो कुफ्र में आता है, क्योंकि इंसान को जो हिस्सा मिलता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अल्लाह ने उसके हिसाब से बनाया है। एक मर्द को जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके लिए अल्लाह उससे पूछेगा। क़यामत के दिन एक मर्द से पूछा जाएगा कि उसने अपने माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई या नहीं उठाई। एक औरत से ये सवाल नहीं किया जाएगा, खा वो जॉब करती हो या ना करती हो। मर्द से सवाल किया जाएगा कि उसने अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाई कि नहीं उठाई।
उसने अपने बीवी की जिम्मेदारी उठाई कि नहीं उठाई, उसने अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई, उसने अपनी गैर शादीशुदा बहन की जिम्मेदारी उठाई कि नहीं उठाई, मजबूर भाई की जिम्मेदारी उठाई कि नहीं उठाई, इसका उससे सवाल किया जाएगा। और इसी वजह से उसके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई है, माल में भी उसका हिस्सा ज्यादा दिया गया है। औरत को भी हिस्सा दिया गया है, लेकिन उस माल से उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं डाली कि उससे पूछगछ की जाएगी कि उसने उससे अपने बच्चों की या अपने शौहर की जरूरत पूरी की या नहीं की, फर्ज के तौर पे। और इंसान को कभी भी जो अल्लाह ने लिखा है उसको बेस्ट मानना है, वही हक है और वही हमारे लिए, इंसान के लिए, एक माशरे के लिए बेहतर होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ फरीदतम मिनल्लाहि इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। तुम्हारे बाप हो या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से कौन तुम्हें नफा पहुंचाने में ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है, बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमत वाला है। अब कुछ अल्फाज हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम मीनिंग देखते हैं, जो इसमें यूज होते हैं। जैसे मुवर्रिस, मुवर्रिस कौन होता है? जिसकी मौत हो गई हो, मैयत, मुतवफी। तरका, तरका क्या होता है? वो जायदाद जो मरने वाला छोड़ जाता है, या जिसको कहते हैं मैयत का छोड़ा हुआ माल, जो कुछ भी वो छोड़ के जाएगा उसको तरका कहा जाता है। वारिस कौन होता है? वो शख्स जो शरई इस्तेहकाक से मीरास पाता है। वारिस वो होता है जिसको अल्लाह ने शरई हक दिया है किसी मरने वाले की जायदाद में, उसको वारिस कहते हैं। अल इर्स या मीरास, जायदाद का वो हिस्सा जो वारिसों में शरीयत के हुक्म से तकसीम किया जाता है। मीरास या इर्स, जायदाद का वो हिस्सा जो वारिसों में शरीयत के हुक्म से तकसीम किया जाता है। अलवसिया, जायदाद का वो हिस्सा जिसे कोई शख्स अपनी मौत के बाद अपनी पसंद के मुताबिक तकसीम कर देता है। तरका पूरे माल होता है। इर्स वो माल जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है वारिसों के हक में जाता है। वसीयत वो माल होता है जो इंसान अपनी मर्जी से वारिसों के अलावा अगर किसी को कुछ देना चाहे तो वो लिख के जा सकता है। यूसी वसा, उसको कहते हैं सुपुर्द करना, हुक्म देना, हिदायत करना, वसीयत करना। एक चीज यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर ले और इसको क्लैरिटी रखिएगा, दो वर्ड्स यूज होंगे, विरासत और वसीयत, ये दोनों अलग अलग मायने में यूज होंगे। हम अक्सर वसीयत और विरासत को एक साथ एक ही समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, जब हम वसीयत का जिक्र करेंगे तो वसीयत वो माल है जो इंसान अपनी मर्जी से मरने के बाद किसी के नाम छोड़ जाता है। वो लोग होते हैं जो वारिस नहीं है। विरासत वो होती है जो अल्लाह ने लिख दी है, जो मरने के बाद कुरान के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से हमको मिलती है। वो हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ, उसमें कोई तब्दीली फेर बदल नहीं आ सकता। ये दो अलग अलग चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? वसीयत और विरासत। इसके अलावा एक होता है तोहफा देना। तो माल तीन चीज तरह से होता है ना। एक तोहफा दिया जाता है जो इंसान अपनी जिंदगी में किसी को दे देता है और जिंदगी में ही वो उस शख्स की मिल्कियत हो जाती है और वो देने वाले का अब उस पर अपनी जिंदगी में ही कोई हक नहीं रहता, ठीक है ना? एक ये पॉइंट है। ये गिफ्ट होता है, ये तोहफा होता है, गिफ्ट होता है। वसीयत वो माल होता है जो जिंदगी में तो हमारी मिल्कियत में रहता है, मरने के बाद हम अपनी मर्जी से किसी को दे सकते हैं लेकिन वारिसों को नहीं।
विरासत वो होती है जो मरने के बाद अल्लाह के मुकर्रर करदा हिस्सों के हिसाब से बांटा जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। अब हम यहाँ पे क्या बात करने, पहला जो आज का टॉपिक है वो वसीयत है, विरासत नहीं, वसीयत। माल की वसीयत क्या होती है? वसीयत एक ऐसा अमल है जिसके जरिए एक शख्स अपनी मौत के बाद अपनी जायदाद दूसरों को दे सकता है। ठीक है, अपनी मौत के बाद जो जायदाद का हिस्सा हम दूसरों को दे जाएंगे उसको वसीयत होती है, वसीयत कहते हैं। लेकिन ये विरासत जिनको मिलती है उनके लिए नहीं होता। ये एक कानूनी दस्तावेज है, ऐलान है कि किस तरह कोई शख्स अपनी मौत के बाद अपनी जायदाद की तकसीम चाहता है। इसका जिक्र, वसीयत का जिक्र सूरह बकरा में भी है, सूरह निसा में भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हिस्सा उस वसीयत, यानी सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं वो कब दिए जाएंगे? उस वसीयत की तकमील के बाद है जो मरने वाला कर गया हो या कर्ज अदा करने के बाद। तो जब किसी की मौत होती है तो उसकी विरासत तकसीम की जाती है। विरासत तकसीम करने से पहले उसकी माल के में देखा जाता है कि उसके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है या उसकी कोई वसीयत तो नहीं वो लिख के गया है। इस वसीयत के बाद फिर जो माल बचता है उसकी फिर विरासत में तकसीम होती है। अब ये वसीयत के कुछ पॉइंट्स हैं, आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो जिक्र करते हैं वो है कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरा अल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीना बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तुम पर फर्ज कर दिया गया कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता है तो अपने माँ बाप और कराबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। परहेजगारों पर यह हक और साबित है। यानी ये आयत उस वक्त उतारी गई जब वसीयत के विरासत के कानून नहीं आए थे। विरासत के कानून आने से पहले अल्लाह ताला ने कहा कि माँ बाप के ऊपर और रिश्तेदारों के ऊपर के लिए वसीयत कर जाओ, क्योंकि बाज दफा लोग अपने माँ बाप को वसीयत में अपनी माल में हिस्सा नहीं देते थे जब विरासत के कानून नहीं उतरे थे। विरासत के कानून उतरने के बाद माँ बाप के नाम वसीयत नहीं की जा सकती सिवाय उसके जो उनका उसमें हिस्सा है। लेकिन बाकी अकरबा जो विरासत में जिनका हिस्सा नहीं है उनके नाम अभी भी वसीयत की जा सकती है। क्या है? सूरह निसा में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा हज़रल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फरज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। जब तक़सीम के वक्त क़राबतदार और यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो तुम उसमें से थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दो और उनसे नरमी से बोलो। यानी विरासत तकसीम होने के वक्त अगर ऐसे लोग मौजूद हों घर में, ऐसे रिश्तेदार जिनको विरासत में हिस्सा नहीं भी मिल रहा है, तो भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको अच्छे अल्फाज में सीधी बात करके उनको भी थोड़ा बहुत दे दो। इससे क्या पता चलता है कि विरासत का हक तो जो अल्लाह ने मुकर्रर कर ही दिया, उसके अलावा भी इंसान दूसरों को अपना माल दे सकता है। वसीयत के तौर पे लिख के जा सकता है या वारिस जब माल आपस में तकसीम कर रहे हो तो कोई ऐसा रिश्तेदार उनका मौजूद हो जो गरीब है, कमजोर है या मरने वाला उससे बहुत मोहब्बत करता था, तो वो उस माल से उसको दे सकते हैं या देना चाहिए और उनसे अच्छी बात, नरमी से बात करनी चाहिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए ये दुरुस्त नहीं कि उसके पास वसीयत करने वाली कोई चीज हो और वो बगैर वसीयत करे 2 रातें बसर करे। ये वसीयत के लिए हुक्म है। वसीयत के लिए अगर आपने कोई इरादा किया कि आपका ये माल किसी ऐसे रिश्तेदार को आपको देना है जो आपका वारिस नहीं है, तो आप उसको जल्द से जल्द लिख दें, वसीयत कर दें, गवाह बना के। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे जो आया है उसमें ये है कि एक 2 तरह से इंसान की माल होता है। अमूमन हमारे यहाँ एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो हमें बाप दादा से मिली होती है, और एक इंसान ने खुद कमाया होता है। ठीक है, ये सब इंसान का अपना माल है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या ये कमाई हुई है या ये मैंने खुद बनाई है या मुझे मेरे बाप से मिली थी। कुछ भी जो आपकी अपनी हो, जब आपको अपने वालिद से मिल गई तो वो आपका अपना माल हो गया। अब आप उसके मालिक हैं, जो आपने कमाया, आपने खुद अपने कमाई से 4 घर बनाए हुए हैं, वो भी आप ही की प्रॉपर्टी है। आपको अपने वालिद से 2 घर मिले में, वो भी आप ही की प्रॉपर्टी। इसमें जब विरासत होगी या वसीयत हम करेंगे तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये सब हमारा अपना माल होता है। वसीयत उस सूरत में वाजिब होगी कि इंसान पर किसी का कोई हक हो और उसका कोई सबूत ना हो। वसीयत करना वाजिब है ताकि वो हक जाया ना हो। मसलन एक इंसान ने किसी से कर्जा लिया था और ये कर्जा उस इंसान को पता है और जिससे लिया है बस उसको पता है। अब ये आपस की अंडरस्टैंडिंग है, इसने कहा कि मैं आपको कर्जा दे दूंगा, इतने साल में दे दूंगा, इतने दिनों में दे दूंगा, और अगले ने मान लिया। कोई विटनेस नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो आप क्या करें? आप वसीयत में लिख जाएं कि मैं इतने रुपए, दरहम, डॉलर्स का कर्जदार हूं, ये मुझे इस शख्स को वापस करना है। इस सूरत में वसीयत फर्ज हो जाएगी लिखना। उसी तरह अगर हमारे ऊपर किसी का माल निकलता है कि हमने किसी को कर्जा दिया हुआ है, तो वो हमारे बच्चों के का तरका बनेगा, उनका हक ना मारा जाए, तो वो भी हम लिख देंगे कि मेरा पैसा इतना इसके ऊपर है, ये इसको इतने इतने वक्त में वापस मिलना है, ताकि जो मरने के बाद औलाद को या जो वारिस है उसको पता हो कि इतना पैसा हमें वहां से लेना है। या और कोई वजह हो, इंसान किसी वेस्टर्न कंट्री में रह रहा है, किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहा है, वहां पे अगर इंसान अपनी वसीयत में विरासत के भी ना कानून ना लिख के जाए और ये ना लिखे कि बेटी को कितना मिलना है, बेटे को कितना मिलना है, कुरान और सुन्नत के हिसाब से, तो ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे उसकी विरासत से महरूम रह जाएं या गलत विरासत हो जाए। तो ऐसी सूरत में भी वसीयत जब लिखे तो उसमें विरासत के भी सब पहलू कुरान और शरीयत के हिसाब से लिख के जाना फर्ज हो जाता है। बात समझ में आई? तो ऐसी सूरत में इंसान 2 दिन भी ना गुजारे बल्कि अपनी वसीयत को लिख के जाए। और वसीयत आज लिखी 2-4 महीने 2-4 साल बाद हम उसको बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो लिख के गए बस वो हमेशा हक रहेगी। जब तक इंसान जिंदा है वसीयत में फेरबदल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वसीयत कब मिलेगी दूसरे को? जब उसकी मौत के बाद। तो जब तक वो जिंदा है तब तक उसको में छेर बदल किया जा सकता है। मसलन हमें कोई पसंद है, कोई शख्स, कोई हमारा दोस्त है, हम उसको कुछ छोड़ के देना चाहते हैं, कुछ और। दूसरी चीज ये कि इंसान बाज दफा अगर कोई इंसान नेकी और भलाई के कामों में अपना माल लगाना चाहता है ताकि मरने के बाद उसको इसका अजर मिले, तो उससे वसीयत करना सुन्नत में शामिल हो जाता है, मुस्तहब है। मसलन माल बहुत ज्यादा है, एक अमीर आदमी, उसके पास अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अब वो चाहता है कि उसके मरने के बाद मस्जिदें बनाई जाए, खैर के कामों में उसका माल लगाया जाए, लोगों को हज करवाया जाए, जैसा भी है, तो वो इसकी भी वसीयत कर जाए, और ये मुस्तहब है, ये सुन्नत है। ये माल और इल्म दोनों के लिए किया जा सकता है। ये अमीरों के लिए मतलूब है, गरीबों के लिए नहीं। जिसके पास पैसा है वो वसीयत करके जाए, जिसके पास पैसा कम है या नहीं है तो वो वसीयत बेहतर है किसी और के नाम ना कर जाए, ताकि क्योंकि उसके वारिस फिर
محروم رہ جائیں گے، کم ہو جائے گا ان کے پاس۔ اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصیت کا سورہ بقرہ میں ذکر کیا تو مالدار کے لیے کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسی بھی صورت میں جی جو بھی آپ کی رشتہ دار ہیں جن کا حصہ آپ کی جائیداد میں نہیں ہے ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، یا آپ کو یہ خطرہ ہو کہ آپ کے جو اپنے وارث ہیں وہ صحیح تقسیم نہیں کریں گے تو بھی آپ وصیت لکھ دیں کہ شرعی تقسیم کے حساب سے ان کو یہ ملے گا، یہ لکھ کے چلے جائیں۔ یہ پوری جائیداد جو وصیت ہوتی ہے جو آپ وارثوں کو کے علاوہ کسی کو دیتے ہیں، یہ پوری جائیداد کے 1/3 سے کم ہونی چاہیے، اور کم زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 دو، اور وہ بھی بہت ہے، اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کے جانا بہتر ہے غریب چھوڑنے سے۔ سعد بن ابی وقاص جب ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے صرف ایک بیٹی ہے، مجھے لگتا ہے میں بہت زیادہ بیمار ہوں۔ اب ان کو لگا کہ ان کی موت کا وقت آ گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا کہ میں اپنی جائیداد کیا دوسروں کو اپنے مرنے کے بعد وصیت کر جاؤں، میری تو صرف ایک بیٹی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ تو پوری جائیداد وصیت کرنے کے لیے حکم دیا نہ آدھی، بلکہ انہوں نے کہا 1/3، اور وہ بھی بہت ہے۔ تو اس کی بیسس پہ صحابہ اکرام کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے، حضرت ابن عباس، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی کے 1/3 سے کم ہو، 1/4 یا اس سے بھی کم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان اپنی وصیت 1/3 سے زیادہ دینا چاہتا ہے کسی کو، تب وہ اپنے جو وارث ہیں ان سب کے سب وارثوں کی رضامندی کے ساتھ دے سکتا ہے۔ سارے وارث اس بات سے اگری کریں خوشی خوشی بغیر کسی پریشر کے کہ جو اس کا والد ہے یا جس سے بھی وہ وارث ہیں وہ ان 1/3 سے زیادہ کسی کو دے دے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی وارث اس بات پہ اگری کر جائیں، تب یہ وصیت تقسیم ہوتی ہے۔ 1/3 سے زیادہ، 1/3 سے کم اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وارثوں ورثہ کے حق میں نہیں کی جا سکتی، لیکن ایسے لوگ جو میت سے وراثت حاصل نہیں کر سکتے ان کے حق میں کری جا سکتی ہے۔ جیسے اسلام میں ویسے تو بچے کی جیسے ہم لوگ مسلم بچے گود لے سکتے ہیں لیکن ان کو اپنے باپ کا نام لگانا ہوتا ہے، اسی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے کسی بچے کو گود لے لیا ہے تو اس کو آپ وراثت میں حصہ نہیں دے سکتے، وراثت میں وہ بیٹے کی طرح حصہ نہیں ملے گا، ہاں وصیت کر سکتے ہیں اس کے نام۔ اب وہ آپ کا گود لیا ہوا بیٹا ہے، بچپن سے آپ نے اس کو پالا، آپ کے بیٹے کی طرح آپ کے ساتھ رہتا ہے، اب آپ کیا کریں، آپ کے مرنے کے بعد اس کو وراثت میں تو کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اس کے لیے لکھ کے جا سکتے ہیں، لیکن 1/3 تک، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ دینا ہے تو جو آپ کے باقی وارث ہیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں دے سکتے۔ اور اگر کوئی بچہ کسی کا گود لیا جاتا ہے تو جو بچہ جو اس کا باپ ہے اس کا نام لگایا جائے گا، اور اپنے باپ سے وہ وراثت میں اس کو پیسہ یا جائیداد ملے گی یا جو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں۔ وصیت صرف وصیت کرنے والے کی موت کے بعد عمل میں آ سکتی ہے، لیکن تحفہ وہ ہوتا ہے جو زندگی میں دیا جاتا ہے۔ تو تحفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی مال ہے اور وہ میں اپنے زندگی میں کسی کو دینا چاہتی ہوں، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ زیور ہو، اور چاہے وہ مکان ہو، زمین ہو، ہم نے کسی زندگی میں دے دیا اور جو جس کو دیا اس کی وہ ملکیت ہو گئی۔ بچوں میں بھی آپ اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں لیکن انصاف ہوتا ہے، تحفے دینے میں بھی انصاف کرنا چاہیے، سب کو برابر تحفہ دیا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بعض دفعہ لوگ اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد بچوں کے نام کر جاتے ہیں، اپنی زندگی میں ہی اگر انسان ساری جائیداد بچوں کے نام کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اسی حصے کے حساب مطابق جو حصہ مقرر کیا گیا، بیٹے کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ،
और बाज़ उलमा बराबर की भी इजाज़त देते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि जो अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर किए हैं उस हिस्से के हिसाब से अगर आप अपनी पूरी जायदाद नाम करने जा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को तोहफे में दे सकते हैं, लेकिन इंसाफ के साथ जो हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए ताकि आपस में बच्चों में मोहब्बतें बनी रहें। एक को ज्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया, एक को दिया दूसरे को नहीं दिया, ऐसा करना मना है। वारिसों में भी इंसाफ करना है। और तोहफा मरने के बाद नहीं दिया जाता, अपनी जिंदगी में ही वो इंसान मालिक हो जाता है। अब वो उस तोहफे से को बेचे, रखे, वो करे, इसमें मेरा, या अगर हमने किसी को दिया उसका हकदार, अब उसमें हमारी कोई से नहीं रह जाती। वसीयत में हमारी जिंदगी तक हम उसमें चेक फेर बदल कर सकते हैं, फिर वो मरने के बाद दी जाती है। और विरासत वो है जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, वो हिस्सा विरासत में जाता है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, ये बेहतर होगा कि लोग अपनी वसीयत 1/3 से कम करें कि 1/4 कर दें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1/3 और 1/3 भी ज्यादा है। वारिसों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से वसीयत करना मना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस वसीयत के बाद जो की जाए और कर्ज के बाद जबकि औरों का नुकसान ना किया गया हो। सूरह निसा में ही जब अल्लाह ताला विरासत का हुक्म देते हैं तो अल्लाह ताला वहां ये भी कहते हैं कि वसीयत अगर की जाती है तो उसको भी दो, लेकिन उसमें किसी का भी नुकसान नहीं मकसूद होना चाहिए। तो इंसान अपने नीयत को हमेशा साफ रखे। वसीयत भी जब करे किसी के हक में तो वारिसों का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। किसी हराम की काम की वसीयत नहीं करनी चाहिए, मसलन ममनू कामों को फरोग देने में। किसी गैर मुस्लिम के हक में वसीयत की जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि देने से गुरेज किया जाए, यानी विरासत में गैर मुस्लिम का हिस्सा नहीं होता, वसीयत में किया जा सकता है। किसी कानूनी वारिस की अदम मौजूदगी में एक शख्स अपनी तमाम जायदाद की वसीयत कर सकता है। मसलन एक इंसान है, अब उसका कोई भी कानूनी वारिस नहीं है। कैसे हो सकता है? कोई मिसाल है कि कोई उसका वारिस ही नहीं हो। मसलन एक इंसान मुसलमान नहीं था, फिर अल्लाह ने उसको हिदायत दी, उसने इस्लाम कबूल किया, अब वो मुसलमान हुआ, मोमिन बना, अब वो कुरान और हदीस पे चल रहा है, अब उसके पास पैसे हैं, लेकिन उसकी विरासत लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो जो उसके अकरबा हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, वो नॉन मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है, तो उनको जायदाद नहीं जा सकती। तो अब क्या करेगा? अब वो वसीयत कर सकता है अपनी पूरी जायदाद की। क्यों? क्योंकि उसके वारिस कोई भी मौजूद नहीं है। और वसीयत हलाल आमदनी से होनी चाहिए। वसीयत में इंसाफ होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह निसा में ही फरमाते हैं, और चाहिए कि इस बात से डरे कि अगर वो खुद अपने पीछे नातवा नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाते हैं जिनके लिए उन्हें फिक्र हो, बस अल्लाह से डरें। और चाहिए कि सीधी बात कहें। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं। तो बाज दफा इंसान वसीयत को में जुल्म कर जाता है। मसलन इंसान के सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो अब वो नहीं चाहता कि उसके भाई के बच्चों को कुछ मिल जाए या भाई को कुछ मिल जाए, हालांकि वो वारिस हैं। तो अब वो अपनी वसीयत में एक ऐसी चीज लिख जाता है कि उसके रिश्तेदारों को जो वारिस हैं वो नहीं मिल पाता। तो इस तरह की वसीयत करना मना है, क्योंकि ये नाइंसाफी है। दूसरी चीज कि जो वसीयत लिखवा रहा है, जैसे मरने वाला है, वो वसीयत लिखवा रहा है किसी की जो बीमार है या बूढ़ा है, तो उस वक्त लिखवाने के वक्त वो इस इंसान को जो लिख रहा है उसको इंसाफ की तरगीब दे, कहे कि इंसाफ करो, उससे कहे कि गलत वसीयत ना लिखो। और अगर वो गलत वसीयत लिख के जाए और मर जाए कोई शख्स, अल्लाह बचा ले ऐसे अमाल से हम सबको, तो जो
بعد میں وراثت کی تقسیم ہو تو جو وراثت تقسیم کر رہا ہے وہ اس وصیت کو بدل دے گا، اس وصیت کو پھر نہیں پورا کیا جاتا، وہ باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ناانصافی ہوتی ہے۔ اور اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ انصاف کرے۔ اگر کوئی وصیت کرنے والا نے کسی کے سامنے کوئی وصیت کی، گواہ بنایا، تو گواہ کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ بھی جھوٹ نہ بولے، انصاف کرے اور صحیح بات مرنے والے کے وارثوں کو بتائے۔ جو وصیت لکھے اسے چاہیے کہ وصیت میں انصاف کرے، جو وصیت لکھوائے اسے چاہیے کہ انصاف کی ترغیب دے، جو وصیت کے بعد یتیم بچوں کی کفالت کرے اسے ان کے ساتھ اچھا سلوک اور رویہ کرنا چاہیے انصاف کے ساتھ۔ تو ہر حالت میں وارثوں کے ساتھ انصاف ہی کرنا ہے، کسی حال میں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ وصیت کو باطل کرنے والی چیزوں کا بیان۔ اگر کوئی دیوانہ وصیت لکھے تو باطل ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو وہ وفات پا جائے، مثلا وصیت لکھ کے انسان رکھا ہوا ہے، وصیت میں اس نے تبدیلی نہیں کری، لیکن اس سے پہلے جس کے نام وصیت کی گئی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب وصیت کی جائے گی تو پھر وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ جس کو دی جانی تھی اب وہ وفات پا چکا ہے۔ اگر جائیداد ہی ضائع ہو جائے، جس جائیداد کی وصیت کی جا رہی تھی وہی ضائع ہو گئی تو وہ بھی باطل ہو جائے گی۔ اگر یہ شریعت کے خلاف ہو جائے، دوسرے عبادت گاہوں کی تعمیر کے متعلق وصیت کی گئی ہو تو وہ بھی باطل ہے۔ وصیت باطل ہے اگر وصیت ایسے کے حق میں کی جائے جو اس سے سنبھالنے کے اہل نہ ہو، جیسے کوئی انسان کتے کے نام وصیت کر جائے، بلی کے نام وصیت کر جائے، تو اس طرح سے وصیت پھر نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ وصیت کے متعلق تھا اور یہیں تک ہم کریں گے۔ اگلے انشاءاللہ کلاس میں پھر ہم دوسرے قرض کے احکام سے شروع کریں گے۔